Good morning to all. Today's session, current electricity part 2. So yesterday we discussed flow of the current in conductor. Okay, current can be travel in solid, liquid, gases and semiconductors. ठीक है, करंट किस किस में ट्रैवल करता, उसके एग्जांपल्स, उसके जो करंट कैरियर्स वो पूरे मैंने यस्टरडे पार्ट में मैंने आपको बता दिया ना, पिछले पार्ट 1 में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। आज पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने वाला हूं कंडक्टर। कौन सा है? कंडक्टर। कंडक्टर में कंडक्ट का माना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्ट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्ट? Conduct means which is transfer something, which is transfer something means in metal which is transfer something from one place to other place is called a conductor, is called a conductor. Okay, see, conductor can transfer two parts can be transferred. One is heat, second one is a electricity. Second one is a electricity. So I explained electricity. So in conductor the flow of current in conductor which is transferred from one body to another body, one end to another end. Sorry, the flow of a current from one place to other place in a conductor is called in a conductor. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक एंड से दूसरे एंड को ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हीट भी ट्रांसफर होता है। क्या हो रहा है? हीट भी ट्रांसफर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये हीट, इसके अंदर भी क्या ट्रैवल हो रहा है? हीट। सो कंडक्टर मीन्स विच इज अलाउ द हीट इनसाइड टू फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ए कंडक्टर। इट आल्सो कॉल्ड ए कंडक्टर। यानी हीट भी ट्रांसफर होता एक हैंड से दूसरे हैंड को और करंट भी ट्रैवल करता। मैं इसका डिस्कस नहीं करूंगा और इसका डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कंडक्टर किसको बोलते हैं? विच मटेरियल इज अलो करंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड ए कंडक्टर। सी, इन दिस कंडक्टर द फ्लो ऑफ द करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सी, दिस इज द कंडक्टर. Okay, this is the conductor. Now I will connected one battery. This is the plus or minus. Now this is the flow of the current direction. Flow of the electron direction. This is the flow of the electron direction. This is the flow of the direction of a current. Okay, flow of the direction of electron and the flow of the direction of current both are in opposite direction. So this end become a lower potential and this end is become a higher potential. So electron will be flows from lower potential to higher potential and current will be flows from higher potential to lower potential. It will be happen in a conductor. So how the conductor is working? I take one example. See, example 1. I take a bulb connected to 3 volt battery. So what happened? Here this is the negative charge and this is the positive charge. Electrons is flows from lower potential to higher potential and current will be flows from higher potential to lower potential. It means electron and current both are traveling in opposite direction to each other.
So what is the represented this one? This part is represented conductor. This part is represented conductor. Conductor के examples क्या होते हैं? All metals. Example क्या होते हैं? All metals. I selected here copper wire. Copper wire. मैं यहाँ पे copper wire को select कर, इधर copper wire को मैंने select कर लिया हूं, तो copper wire के अंदर क्या होता है? करंट ट्रैवल करने लगता है। करंट क्या होता है? ट्रैवल करने लगता है copper wire। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, करंट इसके कॉपर वायर, ये पूरे जो भी मैं ड्रा कर रहा हूँ, बोल्ड लाइन जितने भी है बोल्ड है, ये पूरे क्या है? कॉपर वायर है। एक कॉपर वायर के अंदर करंट ट्रैवल करना लगता है। ये पूरे क्या है? कॉपर वायर है। कॉपर वायर के अंदर क्या है? आपको करंट ट्रैवल कर, सो इट विल बी एक्टिंग एज ए कंडक्टर। इट विल बी एक्टिंग एज ए कंडक्टर। इट विल बी एक्टिंग एज ए कंडक्टर। So what happened? The bulbs are glow. Bulb क्या होता है? ग्लो होता। ओके, बल्ब ग्लो होगा। अगर मैं इस कंडक्टर को क्या कर देता हूं, थोड़ी मान लीजिए एक कंडक्टर को मैं यहां पे ब्रेक कर दिया, यहां पे मैंने ब्रेक कर दिया कंडक्टर पर यहां पे ब्रेक कर दिया, तो यहां पे ये ब्रेक हो गया। So what happened? The current is not conducting in conductor. The current is not conducting in a conductor because this portion will completely maintain a gap. The portion will be maintain a gap, not a connected to each other. Hence, it becomes as a air. So air is acting as a insulator. Air क्या है? Insulator से act करता है। Insulator क्या है? Does not allow the current inside of a metal. Is called a insulator. What is an insulator? Does not allow the current flow in a metal from one part to another part. Is called a insulator. इसको बोला जाता है insulator बोला जाता है। तो air is acting as a insulator. Now I connected one a nail iron. Nail, अब जानते हैं nail को मैं कनेक्ट कर दिया। This nail will be I connected. So this is the iron nail. So what happened? Now the bulb will be glow. The bulb will be glow. अब बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या लिया? कौन सा कंडक्टर लिया? कंडक्टर का नाम क्या था? कॉपर वायर था। अब यहाँ पे नेल कौन सी दिखी है? आयरन वाला है। यानी करंट कैन बी फ्लोस कॉपर, एल्यूमिनियम, करंट विल बी फ्लोस फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम, iron, gold, mercury. These are the example of a conductor. These are the example of a conductor. One more is a silver. One more name is a silver. Ag is represented silver. So current किसमें flow होता? Silver में flow होता, aluminum में flow होता, copper, iron, gold and mercury. These all the examples are conductor. Examples किसके? कंडक्टर के examples होते हैं। See, I replace the copper wire. Copper wire को मैं हटा दूंगा। So कौन से वायर ले लूंगा ये? अब इसको मैं एल्यूमिनियम वायर ले लूंगा। कौन से वायर ले लूंगा ये? एल्यूमिनियम वायर ले लूंगा। एल्यूमिनियम वायर भी ले लूंगा तो बल्ब भी क्या होता है? ग्लो होगा। बल्ब भी क्या होता? ग्लो होता है। यानी आपका कंडक्टर जो भी है ये मेटेरियल वाला होना जरूरी है। जो नीचे बताया है एग्जांपल्स, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये वाला होगा तो आपका कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्लियरली ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आजकल हमारे घरों में जो भी वायरिंग होती है वो पूरा कॉपर से किया गया है। पूरा क्या है? कॉपर से किया गया है। जो एल्यूमिनियम का जो होता है, एल्यूमिनियम जो बाहर पोल से करंट पोल होता है बाहर, जो सर्विसिंग वायर उससे, तो वो एक पोल से दूसरे पोल यानी पावर स्टेशन से लेते हैं अपने घर तक जो वायरिंग किया गया है वो पूरा किससे किया गया है? एल्यूमिनियम से किया गया है। वो पूरा किससे किया गया है? एल्यूमिनियम से किया गया है। तो एल्यूमिनियम से किया गया है, फिर वहां से सर्विस वायर हमारे घर तक पहुंचते हैं, फिर घर में जो भी वायरिंग किया गया है वो पूरा कॉपर से किया गया है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक ही वायर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट फ्लो होने के लिए आपको ये जितने भी मेटल बताया गया है ये पूरे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक था कंडक्टर।
तो अब और एक सवाल है, जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब बल्ब हीट होने लगता है, यानी बल्ब मैंने तो 10 मिनट्स तक मैं बल्ब को ऑन किया, 10 मिनट्स के बाद मैं स्विच ऑफ किया, तो बल्ब आपको जब टच करेंगे तो बल्ब को कैसा होगा, आपको हीट जनरेट करता है। क्या करता है वो, हीट जनरेट करता है। यानी बल्ब एक ही हीट नहीं होता है, जो अंदर होता है कॉपर वायर वो भी हीट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, नॉट ओनली करंट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड आल्सो हीट कैन बी ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कंडक्टर। उसको भी क्या बोल जाते हैं, कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द हीट। इलेक्ट्रिसिटी क्या पूछ रहा है आपको, हीट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करने के कई एग्जाम्पल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कुकर है। ओके, इलेक्ट्रिक कुकर क्या होता है, इलेक्ट्रिक कुकर से हमको क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता, उससे क्या होता, फूड कुक होता। इसी तरह से इलेक्ट्रिक हीटर भी होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता, तो उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता। तो ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पूरे कंडक्टर के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो कंडक्टर में आपको दो बातें याद रखना चाहिए कि करंट भी ट्रेवल करता, उसके साथ हीट भी ट्रेवल करता, यानी हीट भी ट्रेवल करता कंडक्टर के अंदर और करंट भी ट्रेवल करता। अगर करंट ट्रेवल करा तो करंट की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, आपको हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, और एक है हमारा इंसुलेटर। व्हाट इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर मीन्स द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द conductor from one part to another part, or which material does not allow the flow of the current from one end to another end, it is called a insulator. It is called a insulator. इंसुलेटर का एग्जांपल्स क्या होते हैं? इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स के वुड होता है, ओके, नेक्स्ट ग्लास, प्योर वाटर, रबर, कॉटन, प्लास्टिक, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए इंसुलेटर। वुड, ग्लास, प्योर वाटर, रबर, कॉटन, प्लास्टिक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ए इंसुलेटर। तो यहाँ पे देखते हो प्योर वाटर, देखिए प्योर वाटर नहीं, वाटर में करंट ट्रैवल करता है, प्योर वाटर में करंट ट्रैवल नहीं करता, बस इतना याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, प्योर वाटर में करंट ट्रैवल नहीं करता, वाटर में ट्रैवल करता है, इम्प्योर वाटर में करंट ट्रैवल करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको देखना है। तो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में करंट ट्रैवल करता है। की वजह क्या है, ब्लड के अंदर आयरन रहता है, ब्लड के अंदर क्या रहता है, आयरन कंटेंट रहता है। तो आयरन के अंदर भी क्या होता है, करंट ट्रैवल करता है, इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होता है, करंट ट्रैवल करता है। सो ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, सो which does not allow the flow of the current inside of the metal, that metal is called a insulator or bad conductor भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बैड कंडक्टर बोला जा रहा है। तो ये बैड कंडक्टर का ओके स्टूडेंट, इसका इंसुलेटर का एग्जांपल मैंने दे दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, चाहे वो कंडक्टर की हो क्या इंसुलेटर के। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे वाले क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर को उन्हें दे दिया कि एग्जाम्पल देता है कंडक्टर। ओके, कंडक्टर में कौन कौन फ्लो होता है उस एग्जाम्पल क्या होता है, 1 हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 हीट ओनली, सी ऑप्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी ओनली, फोर्थ वन आपको
फोर्थ वन, none of this. None of this. तो आप आंसर क्या देते हैं इसको? आंसर हमारा ये होता है, यानी एक कंडक्टर के अंदर हीट भी ट्रैवल करता और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रैवल करती। देखिए स्टूडेंट, आपको पढ़ा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बट इसके अंदर हीट का थोड़ा कंटेंट आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या है, जो फ्लो हो रहा है उसके बारे में ज्यादा हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कंप्लीटली डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए मैंने ज्यादा इसका फोकस कर रहा हूं कि हीट का भी थोड़ा कंटेंट मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, क्यू बाई टी। कंडक्टर को ले रहा हूं, इसके अंदर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये भी लिख सकते हैं, नहीं बोले तो प्लस आर माइनस एम ई अपॉन टी, ये भी ले सकते। अगर ये करंट के रिलेवेंट है, यानी करंट ओके स्टूडेंट। अगर हीट के एतबार से देखा है तो हीट Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। व्हाट इज एम? एम इज रिलेवेंट टू मास, एम किसको रिलेवेंट, मास। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट या को राइज इन टेम्परेचर, राइज इन द टेम्परेचर। सो दीज आर द बोथ आर वैलिडिटी, दोनों का सही है। तो यहां पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा कि यहां पे देखिए स्टूडेंट, एक कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ एन स्टैंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर ले लिया, एक कंडक्टर को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस पर डायग्राम को नहीं, यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये मैं बता दूंगा। सो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, डॉटेड जो भी प्लॉट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर? n is the represented number of electron in the conductor. What is the E? E is the represented charge of the electron. Standard value क्या है E की? E का standard value है, मालूम है आपको, मैं yesterday इसका इससे प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस पार्ट में बताया 1.6 into 10 to the power minus 90, 1.6 into 10 to the power minus 90 उसके स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। n बोले तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो T बोले क्या है, द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ ए करंट, यानी यहां से करंट यहां से यहां तक ट्रैवल करने में करंट का टाइम कितना होता है पूछेगा। यानी क्या है, आपको करंट यहां से यहां तक फ्लो होने के लिए कितना टाइम ले रहा है करंट, ये भी पूछ सकता है। यानी एक क्वेश्चन में आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। मैं उसको एक एक करके आपको बता रहा हूं कि इस फार्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला यूज करके क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए भी बोल सकते हैं। यानी चार्ज दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, तो डायरेक्ट करंट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं दिया आपको, चार्ज भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि एन की वैल्यू दे दिया और टाइम की वैल्यू दे दिया। यानी कैसे देता है, ओके ऐसा बोल सकते, क्या बोल सकता, 1 million electron flows per minute, find the current in the conductor. Okay, a conductor have 1 million electrons per minute flows from one end to another end. Okay, one end to another end. Find the flow of the current in the conductor. क्या बोला ने, 1 million per minute, 1 मिलियन पर मिनट। मिलियन क्या होता है इधर, 1 मिलियन, आपको मालूम है मिलियन के 1 मिलियन का माना होता है एन के प्लेस में वैल्यू पुट कीजिए, और 1 मिनट पूछ रहा है, 1 मिनट को क्या करना हमको, उसको सेकंड में कन्वर्शन करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 60 सेकंड्स। तो यहाँ के टी के प्लेस में क्या लिखना आपको, 60 सेकंड्स लिखना है, यहाँ पे 1 मिलियन डालना है और ई की वैल्यू स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता, आई की वैल्यू इधर
करंट जितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर आपको मालूम होगा। तो स्टूडेंट ये एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, यही है। ये फार्मूला कहाँ पे कैसा यूज करना है बोले तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक सवाल मैं पूछना था, प्लस और माइनस, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे पॉजिटिवली चार्ज बोल के मेंशन करता है, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज होता है। फाइंड द इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस ई पूछ रहा है। फाइंड द पॉजिट्रॉन बोले तो पॉजिट्रॉन बोले तो प्लस ई पूछेगा, ठीक है। तो प्लस ई रिप्रेजेंट करता है, आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। माइनस ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी ये जनरल इंफॉर्मेशन प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका अंदर। तो मैं ज्यादा ये कहना चाहता हूँ एन और ई और टी पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मा कंटेंट के बेस पे क्या जो भी आने वाला है फार्मा कंडक्टर के बेस पे प्रॉब्लम्स मैंने इस फार्मा बेस पे ही आपको आएगा। तो और एक देखिए यहाँ पे और एक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वाला थ्योरेटिकल सवाल मैं आपसे सामने रखना चाहता हूँ कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो मूव करने लगते हैं, ठीक है। अगर मैंने बैटरी पहले रखा, यानी बैटरी से कनेक्ट किया है कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, बैटरी रिमूव करने के बाद कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं। देखिए दोनों केस मैंने आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे, एनटीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उससे पूछा गया है। सो दिस इज द वन कंडक्टर, सो दिस कंडक्टर इज कंप्लीटली ओके, दिस कंडक्टर इज कंप्लीटली कनेक्टेड विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी बैटरी से कनेक्ट किया जोड़ा गया है। सो कनेक्टेड, सो व्हाट हैपेंड, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the flow of the electrons, this is the flow of the electrons। इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए मैंने और एक आ गया कंडक्टर ले, सेम कंडक्टर ले लिया मैंने, और इसको क्या किया मैंने, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। तो अब इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन मोशन देखिए कैसा है। तो इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मोशन क्या बोलते हैं, ये जो भी है इसमें यहाँ पे मैंने ड्रा कर रहा हूं, इसको बॉन्डेड है, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये आके इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जा रहा है पाथ, इसको फ्लो ऑफ पाथ, इसको बोले, इसके अंदर जो हो रहा है करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ पाथ, यानी इसको एक रास्ता है वो रास्ते में ही ये चल रहा है, ठीक है। एक रास्ता है वो रास्ते में ही इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से, एक तरबियत में, एक ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे इधर फ्लो हो रहे हैं। कब है, व्हेन इट विल बी कनेक्टेड टू बैटरी, ओके। बैटरी कनेक्ट करे कंडक्टर को तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक ऑर्डर में फ्लो होते हैं। अगर बैटरी से कंडक्टर को डिस्कनेक्ट कर दिए तो क्या होता है इधर, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोस इन रैंडम मोशन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछता, I take a conductor which is connecting to the battery. The flow of the direction of a free electron in the conductor. Okay. And the same conductor is disconnected from the battery. The flow of the direction of a free electron in the conductor. Okay. So options क्या पूछेगा आपको, सिंपल है। ऑप्शन 1 क्या होता, देखिए क्वेश्चन की फॉर्मिंग जो है वही आपको आंसर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन फॉर्मिंग क्या था, पहला बैटरी कनेक्ट करा था, दूसरा आके विदाउट बैटरी का था। तो इसमें क्या होता, ये आपको फॉलो पाथ, इसको बोलते हैं
follow path and random motion। दूसरा देखिए random motion and flow path, both are in random motion। next both are in flow path। अब बताइए आंसर क्या हो जाता है? आंसर हमारा क्या होता है? फ्लो पाथ अंडर रैंडम मोशन। इन्हें दोनों सेम है ना? नहीं है, गलत है। ये जो रैंडम मोशन होता है पहले इसको आ जाता है, फिर ये आके इसको आ, ये गलत है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इन दोनों देखना है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी। व्हाट इज द फ्लो ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ओके, and same conductor is a disconnected from the battery, what is the position or the flow of the free electron? ये है क्वेश्चन। पहले क्या है? बैटरी से कनेक्ट करे थे कंडक्टर, दूसरा आके क्या है? बैटरी से डिस्कनेक्ट किया गया करंट है। तो अब ये क्या होगा? ये बैटरी से कनेक्ट किया वाला आता ऑप्शन, ये आपके डिस्कनेक्ट करने वाला ऑप्शन आता है। कौन सा? ऑप्शन 2 में। इसीलिए ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं है। जो दोनों में सेम है ना बोलकर आपको जहन में आता है, लेकिन जो पहला वाला था पहले आंसर को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा कंडीशन है दूसरा ऑप्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज के टॉपिक में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। चलिए स्टूडेंट, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसे कई सवाल है इसके अंदर आपको, तो आपको इसमें पता चलता है कि मैंने कंप्लीट आपके कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में आपको जिक्र किया हूं। तो कॉन्सेप्ट जब जैसा आपको पता चलता है तो आंसर देने में बहुत इजी होता है कि विद इन मिनट में आपको आंसर दे सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं, उसका टाइम होता है 180 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट दिया जाता है। तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है। तो जैसे फिजिक्स में आपको देखा गया, तो क्वेश्चन पढ़ना है, वो न्यूमेरिकल होता है, उसका फार्मा लिखना है, उसका डेटा पूरा कलेक्ट करना पड़ता है आपको, फिर उसका सही फार्मा चूज करना पड़ता है, वहां पे पुट करना, फिर कैलकुलेशन पार्ट। तो आपको क्या है, मोर देन 1 मिनट का टाइम निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में मैंने क्या है, एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बोल के मैं पढ़ाया हूँ, उसमें थोड़ा पार्ट पढ़ाया हूँ, थोड़ा पार्ट अभी पार्ट नहीं पढ़ाया हूँ मैं। तो बाकी का जो पार्ट है वो इंशाअल्लाह अज़्वजल आप यहाँ पे आएंगे तो ऑफलाइन क्लास में आपको क्लासरूम में आपको कंप्लीटली तौर पे मैं उसको पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, मैं एक अच्छी दावा से कह सकता हूं मैं कि एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स आके तकरीबन आपको हम इसको 1.5 महीने पढ़ाना पड़ता, 1.5 मंथ पढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो डेली 1 आवर लेंगे तो 1.5 मंथ होता है। अगर डेली 2 आवर्स ले लिया तो लेस देन 45 डेज से पहले आपका खत्म हो रहा है, 22 डेज में खत्म हो जाता है। कितना हो जाए? 22 डेज में आपकी क्लास में डेली 2 आवर्स रहेंगी ऑफलाइन क्लास में, यानी आपके क्लासरूम में जो टीच करे हैं एसेंशियल फॉर मैथमेटिक्स वो डेली 2 आवर्स होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कंफर्टेबल करते हैं कि मैथ्स का रोल फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम हो जाता। तो वहां से क्या कम टाइम में आपको आंसर देते हैं, क्या न्यूमेरिकल को भी आपको क्या कर सकते हैं, कम टाइम में आपको आंसर देने का चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।